ہر وقت بر وقت۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیراعظم نے پہلگام واقعے کے بعد جنوبی ایشیا کی صورتحال پر پاکستان کے نقطۂ نظر سے آگاہ کیا۔ دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں 90,000 سے زائد جانوں کی قربانی دی۔ 152 ارب ڈالر سے زائد کا معاشی نقصان برداشت کیا۔ وزیراعظم نے بھارت کے بڑھتے ہوئے اشتعال انگیز رویے کو انتہائی مایوس کن اور تشویشناک قرار دیا۔ تنازع کشمیر کا پرامن حل جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا واحد راستہ ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کے خطے میں امن و استحکام کے لیے بھارت اور پاکستان کو مل کر کام جاری رکھنے پر زور۔ The National Security Committee of Pakistan has made it very clear that any attempt to stop or divert the flow of water belonging to Pakistan as per the Indus Water Treaty will be considered as an act of war. In case of any act of aggression, Pakistan remains determined to defend its sovereignty and territorial integrity in exercise of its inherent right to self-defense. بھارتی جارحیت کا اپنی مرضی اور پوری قوت سے جواب دیں گے۔ مودی سرکار اپنی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے بغیر ثبوت الزام پاکستان پر لگا دیتی ہے۔ ہماری غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ جنگ مسلط کی گئی تو منہ توڑ جواب دیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی اہم نیوز کانفرنس۔ بھارت پاکستان سمیت دنیا بھر میں دہشت گردی میں ملوث پانی 24 کروڑ پاکستانیوں کی لائف لائن۔ پانی روکنے کا اقدام جنگ تصور ہوگا۔ سنتاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا۔ بھارتی بیان عالمی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی۔ پاکستان اپنی علاقائی خود مختاری اور سالمیت کو ہر قیمت پر یقینی بنائے گا۔ قوم کی حمایت سے مسلح افواج ہر مہم جوئی کا جواب دینے کے لیے پرعزم ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار۔ ملک کی سالمیت اور خود مختاری کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستانی اداروں اور قوم کا عزم غیر متزلزل ہے۔ بھارت نے مہم جوئی کی تو جوابی کارروائی کے لیے تمام اقدامات مکمل ہیں۔ قوم اپنی سالمیت اور خود مختاری کا ہر قیمت پر دفاع کرے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف۔ واقعے کے فوری بعد ایف آئی آر کے اندراج مندرجات نے سوالات اٹھا دیے۔ پہلگام ایل او سی سے 230 کلومیٹر دوری پر ہے۔ بھارت میں مسلمانوں اور کشمیریوں کے خلاف مسموم مہم جاری۔ بغیر ثبوت کے پہلگام واقعے کو مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ بھارتی میڈیا نے چند ہی منٹس بعد الزام پاکستان پر عائد کر دیا۔ الزامات کے بجائے بھارتی حکومت کو سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر۔ جنگ کا آغاز پاکستان کی طرف سے نہیں ہوگا، لیکن اگر جنگ مسلط کی گئی تو بھرپور جواب دیں گے۔ دوست ممالک اور خطے کی بڑی طاقتیں ثالثی کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ دوست ممالک چاہتے ہیں جنگ کی صورتحال نہ بنے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف۔ بھارت پاکستان کے ساتھ مل کر کشیدگی کم کرے۔ جنوبی ایشیا میں امن اور سلامتی برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے ٹیلی فون پر بات چیت۔ پاک فضائیات دشمن کو دھول چٹانے کے لیے ہر دم تیار۔ جدید ترین لڑاکا طیاروں سے لیس پاکستان ایئر فورس کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار اور پرعزم۔ شاہینوں نے ہمیشہ پاکستان کی سالمیت کی خاطر اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں انتہائی پیشہ ورانہ اور مؤثر انداز میں ادا کی۔ پوری دنیا پاک فضائیہ کی تکنیکی مہارت اور دلیرانہ شہرت کی معترف۔ زمین پربت دشت و دریا ہو دھرتی ہر دھڑکن اپنی
पाक फौज की जंगी मशकें पूरे जोर और शोर से जारी। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का दंदान शिकन जवाब देने के लिए हरदम तैयार। जंगी हिकमत अमली के पेश नज़र मशकों में जदीद हथियारों का अमली मुजाहिरा। स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर की ज़ेर सदारत आज़ाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास। पहलगाम वाक़े के सिलसिले में भारत के झूठे और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए की शदीद मजम्मत। किसी भी जारहियत की सूरत में अफवाज पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार। भारतीय मन घड़त बयानिया अपनी मौत आप मर गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव के सिक्योरिटी इंतजामात पर सख्त सवालात। मुतासरीन के अहले खाना के बयानात दबाव में बदले जा सकते हैं मगर सच्चाई नहीं। बीजेपी बदमाशों को तहफ़्फ़ुज़ देती है, अवाम बेसहारा रहते हैं। अपने ही अवाम की जानों से खेल कर बीजेपी सियासी फायदे समेटना चाहती है। अखिलेश यादव। भारत की पहलगाम हमले को जवाब बनाकर खित्ते में जंगी माहौल पैदा करने की साजिश। एक और मुसल्लह तसादुम का खदशा बढ़ गया। मोदी ने अफवाज को किसी भी वक्त किसी भी हदफ को निशाना बनाने की मुकम्मल आज़ादी दे दी। भारतीय काबीना की सिक्योरिटी कमेटी के मुसलसल इजलास। पाकिस्तान के खिलाफ फौरी और स्ट्रेटेजिक इकदाम पर मुशावरत। दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट जैसे हमले की मनसूबाबंदी। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट। बेगुनाह शहरी भारत के जंगी जुनून का शिकार। औरतों और बच्चों समेत 6 सिख शहरी भारतीय फौज के काफिले के हाथों हलाक। भारतीय काफिला पाकिस्तान के साथ बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र सरहद की जानिब बढ़ रहा था। नशे में धुत फौजी ड्राइवर ने सिखों को कुचल डाला। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मेहनत कशों का दिन मनाया जा रहा है। मुल्क भर में रैलियों और सेमिनार्स का इनकाद। ये दिन मनाने का मकसद मजदूरों की कुर्बानियों और हुकूक को उजागर करना है। पाकिस्तान ने अफरादी क़ुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम कानून साजी और इंतज़ामी इस्लाहात की हैं। मेहनत कश तबके के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान में दर्ज है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मेहनत कशों के आलमी दिन पर पैगाम। मेहनत कश तबका हमारी मईशत और कौमी तरक्की का अहम मुहर्रिक है। मजदूर ना सिर्फ बुनियादी ढांचे की तामीर बल्कि हमारी सनत, ज़राअत और माशी तरक्की का मुअस्सर किरदार है। हम मजदूरों की खुद मुख्तारी, मुनसिफाना उजरत, महफूज माहौल और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का मेहनत कशों के आलमी दिन पर पैगाम। गजा पे इसराइली फोर्सेस के जालिमाना हमले बदस्तूर जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 35 फ़लस्तीनी शहीद। 18 मार्च को जंगबंदी के खात्मे के बाद से इसराइली जारहियत में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 2308 तक पहुँच गई है। 595 बच्चे और 308 ख़वातीन शामिल। वज़ारत सेहत गजा। पाकिस्तान सुपर लीग में आज कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स की टीमें आमने सामने होंगी। मुकाबला दिन 3 बजे से PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। आज दूसरा मैच लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान रात 8 बजे खेला जाएगा।
लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग का 19वां मैच लाहौर कलंदर्स की इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ 88 रन से कामयाबी। 210 रन के ताक़ुब में यूनाइटेड की टीम 16.5 ओवर्स में 121 रन बनाकर आउट। हारिस रऊफ की 4 और सिकंदर रजा की 3 विकेटें। PSL के मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। PSL का 19वां मैच माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दाम। लाहौर कलंदर्स ने साफ और सरसब्ज मुस्तकबिल का शऊर उजागर करने के लिए खुसूसी पट्टियाँ बांधी। पट्टियों पर आज सरसब्ज, कल और ज़्यादा सरसब्ज, महज एक नारा नहीं, हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी जैसे नारे दर्ज थे। सीनियर सूबाई वज़ीर हुकूमत पंजाब मरियम औरंगज़ेब की खुसूसी शिरकत। मैच से कबल शायकीन ने स्टेडियम में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तिमाई हलफ उठाया। और पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 34 में से 19 मैच मुकम्मल। लाहौर कलंदर से पहला मैच हारने के बावजूद इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 10 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पर काबिज। कलंदर्स की टीम 8 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर आ गई। ग्लैडिएटर्स की तीसरी, किंग्स की चौथी, ज़ल्मी की 5वीं और सुल्तान्स की आखिरी पोजीशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ हाजिर है हुमैना राना, शाहिद नसीम। PSL स्पेशल के साथ मैं हूं शफीक खान। और मौसम की ताज़ा तरीन अपडेट लिए मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। हेडलाइंस आपने सुनी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने टेलीफोनिक रबता किया और इस मौके पर बातचीत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और पाकिस्तान की जानिब से बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों पर अमरीकी इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सेक्रेटरी रूबियो को पहलगाम वाक़े के बाद जनूबी एशिया में हालिया पेशरफ्त पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। दहशतगर्दी की तमाम शक्लों और मज़ाहिर में मजम्मत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के अहम किरदार का जिक्र किया और कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में पाकिस्तान ने 90,000 से ज़ायद जानों की कुर्बानी दी और पाकिस्तान को $152 अरब से ज़ायद का माशी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। भारत को बढ़ते हुए इश्तिआल अंगेज़ रवैये को इंतहाई मायूस कुन और तशवीशनाक करार देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत की इश्तिआल अंगेज़ी दहशतगर्दी बिलखुसूस अफ़गान सरजमीन से सरगर्म ISKP, TTP और BLA समेत अस्करियत पसंद ग्रुपों को शिकस्त देने के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों से तवज्जो हटाने का काम कर रही है। उन्होंने पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने की भारतीय कोशिशों को दो टोक अल्फाज में मुस्तरद किया और हक़ाइक़ सामने लाने के लिए शफाफ, काबिल एतमाद और गैर जानिबदाराना तहकीकात के मुतालबे का इयादा किया। उन्होंने अमरीका पर जोर दिया कि वह भारत पर दबाव डाले कि वह ऐसे इश्तिआल अंगेज़ बयानात से गुरेज करे और जिम्मेदारी से काम ले। उन्होंने कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आबी जाहिरियत का इंतखाब किया जो पाकिस्तान के 240 मिलियन लोगों के लिए लाइफ लाइन है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि सिंताज़ मुआहिदे में किसी भी फरीक के लिए यकतरफ़ा तौर पर दस्तबरदार होने की कोई शक नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू और कश्मीर तनाज़े का पुरअमन हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन को यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता है। पाक अमरीका ताउन के बारे में वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर रोशनी डाली कि पाकिस्तान और अमरीका ने गुज़श्ता 70 सालों में मिलकर काम किया है और दोनों फरीक मज़ीद कई शोबों में बशमूल इंसदादी दहशतगर्दी और माशी ताउन को बढ़ाने, मादनियात का शोबे में भी ताउन कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनकी हुकूमत ने गुज़श्ता 1 साल के दौरान बड़ी इक़्तिसादी इस्लाहात की हैं और इसके नतीजे में पाकिस्तान अब इक़्तिसादी बहाली की राह पर गामज़न है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने तफसीली बातचीत पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया और जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए दोनों फरीकों को मिलकर काम जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने भारत पर वाज़ेह किया है कि अगर जाहिरियत की तो अपनी मर्जी और अपने तरीके से जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि सिंताज़ मुआहिदे को यकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। पानी रोकने का कोई भी इक़दाम जंग तस्वुर होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहरुख शफी।
नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि भारत जानते बूझते पहलगाम वाक़े के नाम पर हालात कशीदा कर रहा है। उन्होंने कहा भारतीय की आदत अपनी नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए बगैर सबूत के हर वाक़े का इल्जाम पाकिस्तान पर लगा देती है। उन्होंने कहा कि अगर जंग मुसल्लत की गई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। The National Security Committee of Pakistan has made it very clear that any attempt to stop or divert the flow of water belonging to Pakistan as per the Indus Water Treaty will be considered as an act of war. In case of any act of aggression, Pakistan remains determined to defend its sovereignty and territorial integrity in exercise of its inherent right to self-defense. नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा कि भारत पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस है। भारत ने हमारी गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश का कोई जवाब नहीं दिया। This is not the first time. They have done it before and they have resorted again to the same what they did in Pulwama. India deliberately raises tensions with Pakistan, made allegations against Pakistan after the Pahalgam attack without an iota of evidence and with such dramatic speed. Pakistan has nothing to do with it. We demand an independent and transparent probe by neutral investigators as announced by the Prime Minister of Pakistan, Mohammad Shehbaz Sharif. मोहम्मद इसहाक डार ने कहा कि मकबूजा कश्मीर के अवाम के हकूक को कुचलने के लिए भारत ने काले कवानीन का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि पूरा खित्ता भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात की वजह से खतरे में है। Is it not the time for the international community to hold India accountable for its transnational assassinations in different countries, including Pakistan? Can we deny that the dangerous Indian brinkmanship and efforts aimed at escalation can potentially lead to disastrous consequences in a nuclearized region and beyond? Pakistan has been a victim of terrorism that is planned, orchestrated, and sponsored by India. The hype that is created on each and every incident in India seems to be deliberate for narrow political ends. नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार ने कहा भारत मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की तहरीक को दहशतगर्दी से मुंसलिक करना चाहता है। यही वजह है कि भारत खित्ते में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को हवा दे रहा है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान ने आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम किया। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि दहशतगर्दी के वाक़यात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना भारत का वतीरा है। भारत दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियों को सबोताज करना चाहता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए DGISPR ने कहा कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तफसील आपके साथ शेयर करेंगे यासिर हुसैन। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पहलगाम में होने वाला वाकया LOC से 230 किलोमीटर दूर है। वाकये की फौरी FIR और पाकिस्तान पर इल्जामात ने कई सवाल पैदा कर दिए। If this is the crow distance from the Badori Bulge at the place, it is approximately 100 kilometers. On the road and tracks, it is more than 200 kilometers. From any nearest Pakistani town, let's say it's Bagh, it's even much more. It's quite hilly. It takes about 30 minutes to move from the incident site to the police station. So how it was humanly possible that within 10 minutes, the police was there, evaluated the situation, went back and registered the FIR. DGISPR ने कहा कि पहलगाम वाकये पर इस्तेमाल होने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स जाफर एक्सप्रेस हमले में भी इस्तेमाल हुए। इल्जाम तराशी की बजाय भारतीय हुकूमत सवालों के जवाब दे। 10 लाख से ज्यादा यहाँ पर आर्मी है। अगर यहाँ पर पोस्ट कोई शेयर करेगा ना, उसको रात में उठा ले। पहलगाम की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो सरकार ने लेनी चाहिए। पहलगाम की जिम्मेदारी 27 लोगों की जान गई, वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? चक्के नाकों पर आप हर जगह आपको मिलिट्री दिखेगी, पुलिस दिखेगी, CRPF दिखेगी,
किस लिए? सिक्योरिटी लैब से है। ये संयोग नहीं है, प्रयोग है। किसी ने भी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं लिया? आप क्या सरकार और क्या डिफेंस और क्या आप होम मिनिस्ट्री चला रहे हैं? आपसे अभी तक वो आतंकवादी पकड़े तक नहीं गए हैं। ये घटना घटी है, इससे लाभ किसको हो रहा है? कहाँ ढूंढते फिरोगे भाई? जो तो आपके बीच में यही घूम रहा हो। देश में अब तक के सारे बड़े आतंकी हमले भाजपा की सरकार में हुए हैं। We are monitoring the situation very carefully. Accordingly, our responses and countermeasures in all domains are ready. There will be decisive and assured actions. Rest assured, the people of Pakistan, with its full resolve, will defend the territorial integrity and sovereignty of Pakistan at all cost. तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा कि भारतीय इक़दामात ने पहलगाम वाक़ये से मुतालिक सूरत हाल को मशकूक कर दिया है। वाक़ये के सिर्फ 10 मिनट बाद FIR दर्ज हो गई और बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम आयद कर दिया गया। न्यूज कॉन्फ्रेंस में ऑडियोज और वीडियोज भी दिखाए गए जिनमें पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भारत के खुद मुलविस होने के वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि जंग का आगाज नहीं करेंगे, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि किसी को शक नहीं होना चाहिए कि हम वतन के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तैयार हैं। हमने तो रिस्पॉन्ड करना है और जिस तरह का वो इनिशिएटिव लेंगे उसी तरह फिर रिस्पॉन्स भी उनका उसका दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला और भरपूर दिया जाएगा। इसमें किसी को कुछ शक नहीं होना चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस भागदौड़ में लगी हुई है कि कोई दोस्त ममालिक भी, इस खित्ते के ममालिक भी, बड़ी ताकतें भी, कि ये क्लैश की सूरत हाल जो है अवर्ट हो जाए। अगर कोई किसी को शक है तो जो शहबाज शरीफ ने कहा हुआ है ना कि जी आप इन्वेस्टिगेशन करा लें, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करा लें, उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब है कि वो दाल में कुछ काला है। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटाली बेकर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर आज़म ने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए इलाकाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने तनाव में कमी की अमरीकी ख्वाहिश से आगाह किया और कहा कि अमरीका दोनों ममालिक के साथ राब्ते में रहेगा। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने स्पेन के वज़ीर ख़ारजा होज़े मैनुअल अल्वारेज से टेलीफोन पर बात की। नायब वज़ीर आज़म ने उन्हें भारतीय प्रोपेगेंडे और गैर कानूनी यकतरफा इक़दामात से आगाह किया। स्पेन के वज़ीर ख़ारजा ने मामले के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान की ख्वाहिश को सराहा और शफाफ तहकीकात की तजवीज़ का खैर मकदम किया। अमेरिका ने भारत पर जोर दिया है कि वो कशीदगी कम करने और जनूबी एशिया में अमन और सलामती बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से टेलीफोन पर बातचीत की है और पाकिस्तान के साथ मिलकर कशीदगी कम करने पर जोर दिया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भारत पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर कशीदगी कम करे और जनूबी एशिया में अमन सलामती को बरकरार रखे। मार्को रूबियो ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से गुफ्तगू में पहलगाम हमले में इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार भी किया है। पाक फ़ज़ाइया दुश्मन को धूल चटाने के लिए हर दम तैयार। पाक फ़ज़ाइया ने हमेशा पाकिस्तान की सालमियत की खातिर अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियाँ इंतहाई प्रोफेशनल और मौसर अंदाज में अदा की हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स पूरी दुनिया में अपनी तकनीकी महारत और दिलेराना शोहरत से जानी जाती है। जदीद तरीन लड़ाका तैयारों से लैस पाकिस्तान एयरफोर्स किसी भी जाहिलियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पुराज़म है।
پاک فوج دشمن کی کسی بھی جارحیت کا دندان شکن جواب دینے کے لیے ہر دم تیار۔ پاک فوج کی جنگی مشقیں زور و شور سے جاری ہیں۔ جنگی حکمت عملی کے پیش نظر مشقوں میں جدید ہتھیاروں کا عملی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ مشقوں میں افسران اور جوان اپنی پیشہ ورانہ مہارتوں کو بھرپور طریقے سے دکھا رہے ہیں۔ جنگی مشقوں کا مقصد دشمن کی کسی بھی جارحیت کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دینا ہے۔ اسپیکر شادی لطیف اکبر کی زیر صدارت آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اجلاس میں پہلگام واقعے کے سلسلے میں بھارت کے جھوٹے اور پاکستان مخالف بیانیے کی شدید مذمت کی گئی اور کسی بھی جارحیت کی صورت افواج پاکستان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ قرارداد میں کہا گیا کہ پہلگام میں بھارت کی جانب سے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا گیا، جس کی طرح کہ فالس فلیگ آپریشن بھارت پہلے بھی کرتا رہا ہے، اور حسب روایت پاکستان پر بے بنیاد اور جھوٹے بے سراپا الزامات عائد کرنا، دنیا کو پاکستان کے خلاف ان جھوٹے الزامات کی بنیاد پر بدنام کرنے کی مذموم سازش کرنا اور کشمیریوں کی مسلمہ حق خود ارادیت کی جاری تحریک بدنام اور کمزور کرنا ہے۔ اجلاس کے دوران ممبران اسمبلی کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں تازہ واقعات میں بے گناہ کشمیریوں کا قتل عام اور ان کے گھروں کاروبار کو مسمار کرنا اور 3000 کے لگ بھگ بے گناہ کشمیریوں کی گرفتاریاں ایسے اقدامات ہیں جن کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اجلاس میں بھارتی قابض افواج کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر فائرنگ، سنتاز معاہدے کی معطلی کے اعلانات اور بھارت میں مسلمانوں کے مذہبی مقامات پر حملوں جیسے اقدامات کی شدید مذمت کی گئی اور اقوام عالم سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ بھارت کے ہندتوا ایجنڈے کا فوری نوٹس لے۔ ناظرین، پہلگام حملے کے بعد بھارتی سیکیورٹی پر کئی سوالات اٹھ گئے ہیں اور بھارتی من گھڑت بیانیاں اپنی موت آپ مر گیا ہے۔ سماج وادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے پہلگام حملے کے بعد سیکیورٹی انتظامات پر کئی سخت سوالات اٹھائے ہیں۔ اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ متاثرین کے اہل خانہ کے بیانات تو دباؤ میں بدلے جا سکتے ہیں مگر سچائی نہیں۔ بی جے پی بدماشوں کو تحفظ دیتی ہے اور عوام بے سہارا رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے 250 وی وی آئی پیز کے لیے ہزاروں اہلکار تعینات جبکہ عام شہری غیر محفوظ ہیں۔ اپنے ہی عوام کی جانوں سے کھیل کر بی جے پی سیاسی فائدے سمیٹنا چاہتی ہے۔ بھارت کی پہلگام حملے کو جواز بنا کر خطے میں جنگی ماحول پیدا کرنے کی سازش ہے۔ ٹائمز ناؤ کی رپورٹ کے مطابق مودی نے افواج کو کسی بھی وقت کسی بھی ہدف کو نشانہ بنانے کی مکمل آزادی دے دی ہے۔ بھارتی کابینہ کی سیکیورٹی کمیٹی کے مسلسل اجلاس، پاکستان کے خلاف فوری اور اسٹریٹجک اقدامات پر مشاورت کی جا رہی ہے۔ بھارت نے سنتاز معاہدے کے معطل کر کے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کھلی دھمکی دے دی ہے۔ پاکستان کے شہریوں کو ملک بدر کرنے اور سفارتی تعلقات محدود کرنے کا بھارتی فیصلہ نفرت انگیز پالیسیز کا تسلسل ہے۔ بھارت کی جانب سے دوبارہ سرجیکل سٹرائک یا بالا کوٹ جیسے حملے کی منصوبہ بندی ہے۔ ٹائمز ناؤ کی رپورٹ کے مطابق بھارتی فوج، فضائیہ اور بحریہ کو مکمل تیار باشی کا حکم، ایک اور مسلح تصادم کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ بھارت کا دہشت گردی کے جھوٹے بیانیے کو بنیاد بنا کر پاکستان پر الزام تراشی عالمی برادری کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے۔ ذرائع کے مطابق سیٹلائٹ تصاویر کے ذریعے دریا خشک ہونے کی بھارتی پروپیگنڈا مہم، بھارت پانی کی قلت کو سیاسی ہتھیار بنا رہا ہے۔ بھارتی وزراء کا جنگی بیانیہ خود ساختہ خطرہ بنا کر عوامی توجہ اصل مسائل سے ہٹائی جا رہی ہے۔ مودی حکومت کی جارحانہ سوچ نے پورے خطے کو خطرے میں ڈال دیا۔ امن کی ہر کوشش سبوتاژ کرنے کا منصوبہ تیار ہے۔ بھارتی میڈیا پر پاکستان کو مٹی میں ملا دینے کی کھلم کھلا دھمکی دی جا رہی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت ہے جنگ کے لیے تیار۔ بھارتی میڈیا کا پاکستان کے خلاف آپریشن بدلہ شروع ہونے جانے کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے۔ بھارت کی جنگی تیاریوں پر پاکستان حکومت اور افواج نے کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ بھارت کی پاکستان دشمن پالیسیز پر عالمی طاقتیں خاموش، کیا دنیا نئی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے؟ ناظرین، معصوم شہری بھارت کے جنگی جنون کا شکار ہو رہے ہیں۔ بھارتی فوجی نے سکھ شہریوں کو گاڑی سے کچل دیا۔ تحقیقات سے ثابت ہوا کہ ڈرائیور نشے میں تھا۔
ذرائع کے مطابق 6 سکھ شہری بھارتی فوج کے قافلے کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے۔ معصوم سکھ شہریوں میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ بھارتی قافلہ پاکستان کے ساتھ بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر سرحد کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کشمیر میں پہلگام واقعے کے بعد بھارت میں مسلمان دشمنی کے واقعات مزید بڑھ گئے ہیں۔ بھارت میں ہندوؤں کا مسلمان عورت پر اجتماعی ظلم ایک اور انتہائی دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق بھارتی انتہا پسند ہندوؤں نے ظلم کی حدیں پار کرتے ہوئے مسلمان خاتون پر کتا چھوڑ دیا۔ نہتی مسلم خاتون چوراہے میں کتے کے حملوں سے اکیلے مقابلہ کرتی رہی اور انتہا پسند ہندو تماشا دیکھتے رہے۔ انتہا پسند ہندو کتے کو خاتون کو کاٹنے پر اکساتے رہے، جبکہ بے یار و مددگار مسلم خاتون مدد کے لیے فریاد کرتی رہی۔ مذہبی اسکالرز کا کہنا ہے کہ زندہ خاتون پر کتا چھوڑنا انتہا پسند ہندوؤں کی جنونی ذہنیت اور مسلمان دشمنی کی واضح مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر مومن مرد اور عورتوں کی عزت کے بارے میں احکامات دیے ہیں۔ انتہا پسند ہندوؤں کی ایسی گھٹیا حرکات سے ثابت ہوتا ہے کہ بھارت میں اقلیتیں بالخصوص مسلمان ظلم کا شکار ہے۔ ناظرین، بھارتی عوام بھی مودی کی نفرت انگیز پالیسی سے دل برداشتہ ہو چکی ہے۔ بھارت میں نفرت پھیلانے پر بھارتی عوام میں مودی کے خلاف شدید غصے کی لہر پائی جاتی ہے۔ وہ نریندر مودی کے جھوٹے وعدوں، نفرت انگیز سیاست کو سمجھ چکے ہیں۔ بھارتی عوام سر عام کہہ رہے ہیں کہ مودی صرف نفرت پھیلاتا ہے اور اس پر اب کوئی اعتبار نہیں کر رہا۔ بھروسہ نہیں ہے مودی جی پہ؟ بالکل نہیں۔ دیش کی کیا حالت کر دی ہے، نفرت پھیلا کے 18 دن بی جے پی بی جے پی بی جے پی کیول ستا کا بھوکا ہے، چاہے اس کی ماں سے آدمی سب مر جائے، اس کا دیش کا چنتا نہیں ہے بالکل بھی کسی قیمت پہ۔ کہاں کری اس نے رکھا، جانے والے تو چلے گئے، رو رہا ان کا پریوار رو رہا ہے ان کا، وہ کیا روئے گا، وہ ایک آنسو نہیں بہے گا۔ کیا چاہتی ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ یہ نفرت کی ہوا بند کرے، نفرت مت پھیلائے، جینے دو۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارتی فورسز کے اہلکاروں نے بڑے پیمانے پر کارروائیاں جاری رکھتے ہوئے 2500 سے زائد شہریوں کو گرفتار کیا ہے۔ KMS کے مطابق بھارتی فوج نے اب تک 2 درجن سے زائد خاندانوں کے مکانات کو مسمار کیا ہے۔ یہ ظالمانہ کارروائیاں کشمیریوں کی مزاحمت کو کچلنے میں ناکامی کے بعد بھارت کی بڑھتی ہوئی بوکھلاہٹ کی عکاسی کرتی ہیں۔ تشدد کی منظم کارروائیوں کے باوجود کشمیری عوام آزادی اور حق خود ارادیت کے اپنے مطالبے پر قائم ہیں۔ ہندو انتہا پسندوں کے بڑھتے ہوئے حملوں کے بعد کم سے کم 16 کشمیری تاجر بھارتی ریاست اتراکھنڈ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ریاست میں بجرنگ دل کے غنڈوں کے حملوں میں کم سے کم 2 کشمیری تاجر زخمی ہوئے۔ متاثرین کا کہنا تھا کہ پولیس نے انہیں تحفظ فراہم کرنے سے انکار کیا اور انہیں اپنے تحفظ کے لیے ریاست چھوڑنے کا مشورہ دیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق نے بھارت اور مقبوضہ جموں و کشمیر میں کشمیریوں پر ہونے والے حملوں کو اجتماعی سزا قرار دیتے ہوئے ان کی مذمت کی ہے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ کشمیر میں بڑے پیمانے پر گرفتاریوں، گھروں کی مسماری اور کریک ڈاؤن کے بعد اب بھارت میں کشمیری طلبہ اور تاجروں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ میر وائز نے کشمیری تاجروں اور طلبہ پر حملوں کو کشمیریوں کو نشانہ بنانے کی مہم کا حصہ قرار دیا۔ PDP سربراہ محبوبہ مفتی نے کہا کہ پہلگام واقعے کے بعد انہیں بھارت میں مقیم کشمیری طلبہ کی طرف سے مسلسل پریشان کن کالیں موصول ہو رہی ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے بارے میں فاروق عبداللہ کے بدلتے ہوئے موقع پر تنقید کی اور اسے موقع پرستی قرار دیا۔ گلگت بلتستان کے دلکش پہاڑوں کے دامن میں اسکردو سے متصل گاؤں منٹھل جہاں بستی ہے، قربانی اور وطن سے عشق کی وہ داستان جو نسل در نسل سینوں میں محفوظ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں 1971 میں بھارت سے ہجرت کر کے آنے والے خاندانوں نے نہ صرف نئی زندگی کی بنیاد رکھی بلکہ پاکستان سے اپنی محبت کو اپنی پہچان بنا لیا۔ آج بھی ان کے جذبے، ان کے لہجے اور ان کی آنکھوں میں پاکستان کی روشنی چھلکتی ہے۔ اسکردو سے محمد عمران کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ اسکردو کے بلند و بالا پہاڑوں کے دامن میں آباد یہ خاموش گاؤں منٹھل وطن پرستی کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ 1971 کی جنگ کے دوران بھارت سے ہجرت کرنے والے ان مہاجر خاندانوں نے پاکستان کو اپنی پہچان بنایا اور یہاں نئی زندگی کا آغاز کیا۔ یہاں کے بزرگ ہو یا نوجوان، سب کی زبان پر افواج پاکستان کے لیے عزت اور اعتماد کے الفاظ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان نے انہیں تحفظ اور عزت دی۔ ہمیں پاکستان کے ساتھ محبت ہے، پاکستان کے ساتھ بہت خوشی سے ہم یہاں پہ ہیں اور افواج پاکستان کے ساتھ ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب بھی ضرورت پڑیں گے ہم بارڈر پہ جانے کے لیے، جنگ لڑنے کے لیے، ہمارے تن من دن، ہمارے پاس جو دولت ہے، ہمارے پاس جو عزت ہے، ہم سب کو پاکستان کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کے عوام انہوں نے ان کے بہت ہمارے اوپر احسان ہے۔ انہوں نے ہمارے لیے یہاں پاکستان میں جگہ دیا
और हमारे लिए नौकरियां दिया, तो हम इधर पाकिस्तान में बहुत खुश हैं। हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं और हमारे तमाम जो मुहाजिरीन के हमारे जवान हैं, हमा बवक़्त किसी भी वक्त जो है ना हमें जंग की सूरत हाल हो या किसी भी सूरत हाल के लिए हमें बुलाया जाए, हम उसके लिए तैयार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। ये जज्बा हुब्बुल वतनी और अफवाज पाकिस्तान से बेमिसाल मोहब्बत इस गाँव को पूरे मुल्क में मुनफरिद बनाती है। मोहम्मद इमरान, PTV न्यूज़, स्कर्दो। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मेहनत कशों का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद मजदूरों की कुर्बानियों और हुकूक को उजागर करना है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मेहनत कशों के दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान अपने मेहनत कशों के लिए रोज़गार के हुसूल के दौरान महफूज, सेहतमंद और बावकार हालात को फ़रोग देने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान ने मजदूरों और अफरादी क़ुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम कानून साजी और इंतज़ामी इस्लाहात की हैं। मजदूरों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में दर्ज है। मेहनत कश अफरादी क़ुव्वत कौम की तरक्की के पीछे असल मुहर्रिक है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने कलीदी बैनुल-अक़वामी लेबर कन्वेंशन की तौसीक़ की है। डिजिटाइजेशन और लेबर कवानीन इस्लाहात के ज़रिए हम एक ऐसे मुस्तक़बिल की तामीर कर रहे हैं जहाँ हर मजदूर को बावकार और महफूज रोज़गार तक रसाई हासिल हो। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि मजदूर और मेहनत कश तबका हमारी मईशत और कौमी तरक्की का एक अहम मुहर्रिक है। मजदूर न सिर्फ हमारे बुनियादी ढांचे की तामीर करते हैं बल्कि हमारी सनअतों, ज़राअत और मईशत की तरक्की में भी अहम किरदार अदा करते हैं। आलमी यौम मजदूर के मौके पर सदर मुमलिकत ने मेहनत कशों की काविशों, जिद्दोजहद और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन हमें उस तारीखी जिद्दोजहद की याद दिलाता है जो दुनिया भर के मेहनत कशों ने अपने हुकूक और वक़ार के लिए की। हम मजदूरों की खुद मुख्तारी, मुनसिफाना उजरत, महफूज माहौल और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने अज़्म का इयादा करते हैं। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा कि कारकुन हमारा फ़ख्र है, कौमी तरक्की इन्हीं की मेहनत और किरदार की मरहून मिन्नत है। वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिह हुसैन ने कहा है कि हुकूमत मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए मुतादिद इक़दाम कर रही है। आलमी यौम मजदूर पर वीडियो पैगाम में उनका कहना था कि हम मेहनत कशों की अज़मत को सलाम पेश करते हैं जिनकी लाजवाल कुर्बानियों से मईशत का पहिया रवां दवा है। एक मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान की तामीर में हमारी लेबर फोर्स के अनमोल और बेमिसाल किरदार की तजदीद अहद का दिन है। हमारे कारकुनान ख्वाह कारखानों में हों, खेतों में, दफातर या तामीराती जगहों पर हों, गैर मुतज़लज़ल अज़म और इस्तिक़लाल, लगन और दयानतदारी के साथ मसरूफ़ अमल है। इनकी मुखलसाना कोशिशें पुरअज़म, पायदार और पुरुम्मीद पाकिस्तान के जज्बे का सबूत हैं। हम अपने मज़दूरों की कुर्बानियों और कामयाबियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इनके वक़ार, हकूक़ और फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए अपने भरपूर अज़म का इरादा करें। हुकूमत मज़दूरों और मेहनत कशों के लिए मुनसिफाना उजरत, काम के हालात को बेहतर बनाने, हुनरमंदी और इनकी इस्तेदाद कार में इजाफ़े के लिए पुरअज़म और साबित कदम है। आइए हम मिलकर इत्तेहाद और यगानगत के साथ एक ऐसे मुस्तक़बिल की तरफ बढ़ें जहाँ हर कारकुन की कदर और इज़्ज़त हो, इसका मुस्तक़बिल महफूज, खुशियों से भरपूर और बाख्तियार हो। अल्लाह हमारी कौम और हमारे कारकुनान को अमन, खुशहाली और तरक्की अता फरमाए। आमीन। पाकिस्तान पाइंदाबाद। कौमी कमीशन बराए सनअती ताल्लुकात के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने कहा है कि NIRC का बुनियादी मकसद मुल्क में सनत का पहिया रवां रखना है। सनत चलती रहेगी तो मजदूर का चूल्हा भी चलता रहेगा। इस्लामाबाद में मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर मुनक़दा कॉन्फ्रेंस से खिताब उन्होंने कहा कि मेहनत कश के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। मेहनत कश तबके की फलाह बहबूद हमारी तरजीह होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने कहा है कि मेहनत कश तबके का मुल्क की तरक्की में अहम किरदार है। आइन में मेहनत कश तबके के हुकूक़ की ज़मानत दी गई है। उन्होंने कहा कि आइन बावर कराता है कि तमाम इंसान और उनके हुकूक़ बराबर हैं। सुप्रीम कोर्ट इंसाफ का सबसे बड़ा और आखिरी इदारा है। हम मुरव्वजा कानून के मुताबिक फैसला करते हैं। उन्होंने कहा कि हम फैसला करते हैं, इंसाफ अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है। उनका ये कहना था कि फलाह बहबूद हमारी तरजीह होनी चाहिए। वज़ीर मुमलकत सेहत डॉक्टर मुख्तार भारत से ब्रिटिश हाई कमीशन के ग्लोबल हेल्थ डायरेक्टर मिशन ने मुलाकात किया। मुलाकात में सेहत के शोबे में पेशरफ्त और आलमी शराकतदारों से करीबी ताउन पर इत्तेफाक किया गया। इस मौके पर बरतानिया के ताउन से जारी UAID फॉर हेल्थ प्रोग्राम की पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया।
वज़ीर ममलकत डॉक्टर मुख्तार बर्थ ने सेहत मजबूत और पायदार इस्लाहात के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा करते हुए कहा कि शहरी इलाकों में प्राइमरी हेल्थ केयर के निज़ाम को मजबूत बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि तौलीदी सेहत के जरिए ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना पायदार तरक्की की बुनियाद है। डॉक्टर मुख्तार ने कहा कि पाकिस्तान में मकामी सतह पर वैक्सीन की तैयारी के विजन पर गामजन है ताकि बैनुल-अक़वामी मार्केट पर इन्हिसार कम हो और हंगामी सूरत हाल में सेहत की सहूलियात की बरवक्त रसाई मुमकिन हो सके। उन्होंने कहा कि बरतानिया के फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस और दीगर शराकतदारों की तकनीकी मदद को सराहते हैं। फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए जाने वाले पाकिस्तानी आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी और उनकी शिकायत के अजाले के लिए मदीना मुनव्वरा में मरकजी कंट्रोल ऑफिस कायम कर दिया गया है। मज़ीद तफसील जानते हैं बिलाल शेख से। रवां साल पाकिस्तान से 1 लाख से ज्यादा आज़मीन हज की सादत हासिल करेंगे। पाकिस्तान हज मिशन की जानिब से मदीना मुनव्वरा में हज ऑपरेशन के लिए कायम मरकजी कंट्रोल रूम में खाने और रिहाइश की सहूलियात, रियाजुल जन्नह की ज़ियारत और मक्का रवानगी में रहनुमाई के लिए ख़ुसूसी डेस्क कायम किए गए हैं। यहाँ पर मेन जो शोबे हम बनाते हैं वो एक तो लास्ट एंड फाउंड है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनको हुज्जाज को हेल्प देते हैं हर चीज़ में। इस दफ़ा ये हम एश्योरेंस देते हैं मिनिस्ट्री वजारत के बिहाफ पे भी, हमारा जो यहाँ पेप ऑफिस है, कि इस दफ़ा जो हुज्जाज की फैसिलिटेशन और वेलफेयर है वो अनप्रेसिडेंटेड होगी। मरकजी कंट्रोल रूम में आज़मीन हज की सहूलत के लिए पाक हज ऐप के जरिए शिकायत के इंदराज, इजाले और रहनुमाई के लिए मॉनिटरिंग डेस्क भी कायम किया गया है। यहाँ पर आज़मीन हज की सहूलत के लिए अकाउंट्स और HR के शोबे भी कायम किए गए हैं। मदीना मुनव्वरा में आज़मीन हज की आमद से 3 दिन कबल कायम किए जाने वाला ये मरकजी कंट्रोल रूम हज ऑपरेशन मुकम्मल होने तक अपना काम जारी रखेगा। बिलाल शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मदीना मुनव्वरा। और आज अब आप जान सकेंगे खेल की खबरें। PSL स्पेशल में खुशामदीद। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के दिलचस्प और सनसनीखेज मैचेस जारी हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। दोनों मुकाबले कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होंगे। पहले मैच में मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स की टीमें आमने सामने होंगी। मुकाबला दिन 3 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पे बराह रास्त दिखाया जाएगा। कराची किंग्स ने अब तक अपने खेले गए 6 मैचेस में 3 जीते और 3 हारे हैं। मुल्तान सुल्तान्स को 7 में से 6 मैचेस में शिकस्त का सामना रहा। आज दूसरा मैच लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान रात 8 बजे खेला जाएगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 6 में से 4 मैच जीते और 2 हारे हैं। लाहौर कलंदर्स ने 6 में से 3 मैच जीते और 3 हारे हैं। 6 रन बदला ले लिया। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में इस्लामाबाद यूनाइटेड की पहली नाकामी। लाहौर कलंदर्स ने लीग लीडर के खिलाफ 88 रन से कामयाबी हासिल की। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पे बराह रास्त दिखाया गया। तफसील जानते हैं निसार मेहदी की इस रिपोर्ट में। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। लाहौर कलंदर्स ने 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 209 रन बनाए। ओपनर फखर जमान और मोहम्मद नईम ने टीम को 50 रन का आगाज दिया। फखर जमान ने 44 और मोहम्मद नईम ने 25 रन स्कोर किए। क्या शॉट है, एक बार फिर उठा दिया। वही किया यूनाइटेड ने। कदमों का इस्तेमाल। डेरल मिचेल 28 और अब्दुल्ला शफीक 22 रन बना सके। सिकंदर रज़ा ने 17 गेंदों पर 39 रन की इनिंग्स खेली। सैम बिलिंग्स 38 रन बनाकर नॉट आउट रहे। एक और बड़ा शॉट, तेज बॉल, इसे भी उठा दिया है, सर के ऊपर से उठाया। 6 रन। यूनाइटेड की जानिब से माद वसीम और जेसन होल्डर ने 2-2 विकेटें हासिल की। अच्छा नहीं है और दूसरी बारी से ही कैच तो कर लिया नवाज ने। हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 16.5 ओवर्स में 121 रन बनाकर आउट हो गई। एंड्रिस गोस 41 और सलमान आगा 36 रन बनाकर नुमाया रहे। और ये वो रन नहीं है, और शानदार वेलकम किया। यहाँ पर रन्स नहीं रुकेंगे, लेकिन जब आप पहले से शॉट सोचेंगे। लाहौर कलंदर्स की जानिब से हारिस रऊफ ने 4 और सिकंदर रजा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। बोल्ड कर दिया। अच्छी डिलीवरी, क्या ये ग्लव को, और सीधा खेल दिया।
ऑलराउंड कारकर्दगी पर सिकंदर अजम मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। निसार मेहदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। चांस है, आउट हो जाएंगे और कैचिंग तो आज रही है शानदार। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने कहा है कि पिच दोनों टीमों के लिए एक जैसी थी, हमने फील्डिंग अच्छी नहीं की। लाहौर में पोस्ट मैच न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शादाब खान ने कहा कि लाहौर की कंडीशंस मुख्तलिफ हैं, जल्दी कंडीशन से हम आहंग होना पड़ेगा। लाहौर कलंदर्स की बैटिंग के हवाले से बात करते हुए शादाब खान ने कहा कि जब बैटर सेट हो जाता है तो आखिर में इनको रोकना मुश्किल है। लाहौर कलंदर्स के हारिस रऊफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बॉलिंग करता हूं, कोशिश है कि करियर के आखिर तक इसी पेस के साथ बॉलिंग करता रहूं। हारिस रऊफ ने कहा कि हमारे तमाम मैचेस हाई स्कोरिंग हुए, विकेट से बॉलर्स को मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि टॉप टीम अभी कोई भी नहीं, हम चाहते हैं हम टॉप पर जाएं। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के 19वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ बॉलिंग करते हुए लाहौर कलंदर्स के फास्ट बॉलर्स शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ ने T20 क्रिकेट में अहम संग मील अबूर किया। शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ दोनों बॉलर्स ने T20 क्रिकेट में अपनी 300 विकेटें मुकम्मल कर ली। शाहीन आफरीदी T20 क्रिकेट में 300 विकेटें मुकम्मल करने वाले तेज तरीन पाकिस्तानी बॉलर बन गए हैं। उन्होंने कैरियर के 216वें मैच में ये एजाज़ हासिल किया। हारिस रऊफ 228वें मैच में 300 विकेटें मुकम्मल करके दूसरे तेज तरीन पाकिस्तानी बॉलर बने। शाहीन आफरीदी T20 क्रिकेट में 300 विकेटें लेने वाले दुनिया के चौथे तेज तरीन बॉलर भी हैं। चांस है, आउट हो जाएंगे और कैचिंग तो आज। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मौसर इक़दाम के तौर पर लाहौर कलंदर्स ने मैच के दौरान खुसूसी तौर पर तैयार करदा पट्टियाँ पहनी, जिनका मकसद साफ और सरसब्ज मुस्तकबिल के लिए शऊर उजागर करना था। खिलाड़ियों की जानिब से पहनी गई इन पट्टियों पर आज सरसब्ज, कल और ज़्यादा सरसब्ज महज एक नारा नहीं बल्कि हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है जैसे बेदारी और तहफ़्फ़ुज़ के पैगामात दर्ज थे। मैच से कबल शायकीन ने स्टेडियम में इकट्ठे होकर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक इज्तिमाई हलफ उठाया। हलफ बर्दारी तकरीब में सीनियर सूबाई वज़ीर हुकूमत पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने खुसूसी शिरकत की और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, फ़िज़ाई मयार की बेहतरी, आलूदगी के कंट्रोल और मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ बेदारी की मुहिम में हुकूमती संजीदगी से आगाह किया। इस मौके पर मरियम औरंगज़ेब ने इज्तिमाई माहौलियाती जिम्मेदारी की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग 10 का आधे से ज्यादा सफर तय, 34 में से 19 मैचेस मुकम्मल। मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स ने 7-7 जबकि बाकी टीमों ने 6-6 मैच खेले हैं। पॉइंट्स टेबल पर दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम इवेंट में पहली नाकामी के बावजूद 10 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पर काबिज है। लाहौर कलंदर्स की टीम यूनाइटेड के खिलाफ कामयाबी के बाद 8 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर आ गई है। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम के 6 में 4 मैच जीतकर 8 पॉइंट्स हैं, ताहम नेट रन रेट की बुनियाद पर इसकी तीसरी पोजीशन है। कराची किंग्स 6 पॉइंट्स के साथ चौथे, पेशावर ज़ल्मी 4 पॉइंट्स के साथ 5वें और मुल्तान सुल्तान्स 2 पॉइंट्स के साथ आखिरी नंबर पर हैं। नाजरीन, PSL स्पेशल से फिल वक्त इतना ही। नाज़रीन, इस साल 1 लाख से जायद पाकिस्तानी फरीज़ाए हज अदा करेंगे, जिनमें से 88,380 पाकिस्तानी सरकारी हज स्कीम और बाकी प्राइवेट हज स्कीम के तहत हज अदा करेंगे। हुकूमत की जानिब से इस मरतबा पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए किए जाने वाले इंतज़ामात के बारे में हमने रब्ता किया है पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल हज अब्दुल वहाब सुमरो से, जो इस वक्त मक्का मुकर्रमा में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं अब्दुल वहाब सुमरो साहब से हज इंतज़ामात के हवाले से, उनसे मज़ीद आगाही भी लेंगे। आपको इस वक्त बता रहे हैं कि इस साल पाकिस्तान से 1 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी जो है वो फ़रीज़ाए हज अदा करने जा रहे हैं। 88,380 पाकिस्तानी सरकारी हज स्कीम के तहत और बाकी प्राइवेट हज स्कीम के तहत हज का फरीज़ा अदा करेंगे। बिल्कुल नाज़रीन, और हुकूमत की जानिब से इस मरतबा पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए किए जाने वाले इंतज़ामात जो हैं उनसे हम आपको आगाह करेंगे। बेहतरीन इंतज़ामात किए गए हैं। वहाँ पर मौजूद जो इस वक्त हाजी पहुँच चुके हैं हज के लिए, वो इस हवाले से क्या कहते हैं, जिन हाजियों ने इसके बाद यहाँ से रवाना होना है उस हवाले से भी हमने आपको आगाह किया। और तकरीबन 1 लाख से ज़ायद जो पाकिस्तानी हैं वो फ़रीज़ाए हज अदा कर सकेंगे इस साल। और ख़ास तौर पर सऊदी हुकूमत की जानिब से जो तादाद थी उस हवाले से रिलैक्सेशन दी गई थी पाकिस्तान की जानिब से दरख्वास्त के बाद, और मज़ीद तकरीबन 20,000 जो हाजी
हैं उनको इजाज़त दी गई कि वो भी हज कर सकते हैं, और इस तरह से तकरीबन जो सरकारी स्कीम के तहत जो लोग हज कर रहे हैं उनकी तादाद जो है वो 88,380 है, जबकि इसके बाद के जो लोग हैं वो प्राइवेट जो हज स्कीम है उससे इस्तेफादा करेंगे। और इस हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस पर ख़ास इंतजामात किए गए हैं, और रोड टू मक्का का जो एक तरीका हुआ करता है, एक जो प्लेटफॉर्म है, उसके तहत उनको ख़ास तौर पर जो सहूलतें हैं वो मुहैया की जाएंगी। भले वो मिना में क़याम हो, मुज़दलिफ़ा की बात हो या जमरात में कंकरियाँ मारने की बात हो, हर जगह पे हमने देखा है कि पाकिस्तान हमेशा हाजियों के लिए अच्छे इंतजाम करता है, और सऊदी हुकूमत बेहतरीन इसके साथ कोऑर्डिनेट भी करती है। और फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए जो जाने वाले पाकिस्तानी आज़मीन हज हैं उनको बेहतरीन सहूलियात फराहम की गई हैं, और उनकी शिकायत के इजाले के लिए भी मदीना मुनव्वरा में मरकज़ी कंट्रोल ऑफिस कायम कर दिया गया है। हमने इस वक्त रब्ता किया अब्दुल वहाब सुमर साहब से, उनसे हज इंतजाम के हवाले से तफसीलात जानते हैं। जी समर साहब, बताइएगा क्या इंतजाम किए गए हैं हुजाज के लिए? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया लेने का। इंतजाम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। अब पिछले साल की तरह हमने इस साल भी मदीना मुनव्वरा में मरकजिया के अंदर 100% जो है वो अकोमोडेशन सिक्योर की है, जो कि यहाँ पे कॉम्पिटिशन है, और ज्यादातर 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार होटल्स जो है किए हैं। हाजियों को वॉकिंग डिस्टेंस पे इंशाल्लाह जो है वो मस्जिद नबवी में जो है एक्सेस हासिल होगी। और इस चूँकि मदीना का पहले जो है 16 दिन पहले मदीना मुनव्वरा में फ्लाइट्स आती हैं, फिर एक हफ्ते के बाद 40 नमाजें पूरे करने के बाद फिर मदीना के लोग जो है ना वो मक्का रवाना हो जाते हैं। तो मक्का में भी हमने उनके लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। और मैं ये भी आप चलूं कि इस साल पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा सरकारी हज जो है वो कम्प्लीटली एयर कंडीशन होने जा रहा है। जिप्सम बोर्ड, एयर कंडीशन, सोफा बेड, शेल्फ वगैरह, मीना के इंतजाम तकरीबन 80% पूरे हो गए हैं। हम लोग फ्रीक्वेंटली वहाँ पे विजिट करते हैं। मक्का बेहतरीन किस्म की बिल्डिंग और उनके खाने का इंतजाम किया हुआ है। जो है जिसको ट्रेवल मुज़दलिफ़ा और मीना के दरमियान वहाँ पे 64,000 हुज्जाज के लिए ट्रेन का बंदोबस्त है, और तकरीबन 24,000 हुज्जाज के लिए बस का बंदोबस्त है। तो इंशाल्लाह इस साल पाकिस्तान की तारीख के बेहतरीन इंतजाम हज में नजर आएंगे, और इंशाल्लाह हाजियों को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। जी सही, बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर जनरल हज अब्दुल वहाब सोमर हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, और उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी जो आज़मीन हज हैं उनको बेहतरीन सहूलियात मुहैया की जाएंगी। और नाज़रीन, आपको यहाँ पर आगाह करें कि वज़ीर आला पंजाब की कोऑर्डिनेटर बराए पॉपुलेशन वेलफेयर सायरा अफजल तारड़ ने कहा है कि किसी में इतनी जरूरत नहीं कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे। अगर मोदी जंग चाहते हैं तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हाफिजाबाद में अंजुमन ताजरा और मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुनक़दा कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह क़यामत तक कायम व दायम रहेगा। सायरा अफजल तारड़ ने कहा कि पहलगाम वाक़े को बुनियाद बनाकर मोदी आबी जारहियत पर उतर आया है। उन्होंने कहा कि पूरी कौम मुत्तहिद होकर अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और उनकी इस्तेदाद-ए-कार में इजाफे के लिए लाहौर की एक निजी यूनिवर्सिटी में सेमिनार का एहतमाम किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए माहिरीन ने नौजवानों के लिए बाइज़्ज़त रोज़गार, गैर कानूनी हिजरत तहफ़्फ़ुज़ और तालीम को मार्केट की ज़रूरियात से हम आहंग करने के लिए तजावीज़ दी। मुकर्रिरीन ने कहा कि पायदार माशी तरक्की के लिए नौजवानों के किरदार को मज़ीद फ़ाल करना होगा। सेमिनार में शरीक माहिरीन ने नौजवानों के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक में नौकरियों के हुसूल और नए कारोबार शुरू करने के लिए ज़रूरी हुनर और मौक़े की निशानदही की। नाज़रीन, मुल्क के दूसरे शहरों की तरह गर्मी की लहर ओकाड़ा को भी अपनी लपेट में लिया हुआ है। मुसलसल खुश्क मौसम की वजह से दर्जा हरारत में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशरफ इस वक्त ओकाड़ा में मौजूद हैं। मज़ीद तफसील उनसे जानते हैं। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। मुल्क भर की तरह इन दिनों ओकाड़ा भी शदीद गर्मी की लपेट में है। गर्मी की शिद्दत में इजाफे ने मामूलात ज़िंदगी को बुरी तरह से मुतासर किया है। उकाड़ा में आज दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। दर्जा हरारत की शिद्दत में इजाफे से उकाड़ा शहर और इसकी तहसीलों दीपालपुर और रिनाला खुर्द में मामूलात ज़िंदगी को बुरी तरह से मुतासर किया है, जबकि इंसानों के साथ जानवर, परिंदे और फसलें भी शदीद मुतासर हो रही हैं।
गर्मी से मेहनतकश और मजदूर तबका सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है और प्यास की शिद्दत भी बढ़ गई है। कि बच्चे मजदूर घर से ना निकले हैं, ज़रूरी निकलना हो तो कपड़ा सर पे रखें, छतरी का इस्तेमाल करें और सायादार जगहों पे बैठें। उसके साथ जो मजदूर भाई तो मजदूरी करते हैं, उनको चाहिए मशरूबात पिए। अगले कई रोज़ तक बारिश ना होने और उकाड़ा का मौसम खुश्क रहने से दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान है। शहरी दिन 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक घर से बाहर ना निकलें। पानी और म्यारी मशरूबात का ज़्यादा इस्तेमाल करें। मोहम्मद अशरफ, PTV न्यूज़, रिनाला खुर्द, उकाड़ा। नाज़रीन, PDMA पंजाब ने 4 मई तक सूबे के बेशतर अजला में गर्द आलूद हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया है। मज़ीद तफसील जानते हैं हमारी नुमाइंदा अस्का मकसूद से। अस्का, अपडेट कीजिएगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में आज सुबह से मौसम गर्म और खुश्क है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। PDMA पंजाब ने 30 अप्रैल से 4 मई तक पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया है। पंजाब के बेशतर अजला में 30 अप्रैल से 4 मई तक गर्द आलूद हवाएं और गरज चमक के साथ बारिशें हो सकती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक आंधी और बारिशों के पेश नज़र ज़िले इंतज़ामिया और तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। PDMA ने शहरियों को हिदायत की है कि मौसमी सूरत हाल के मुताबिक आसमानी बिजली से तहफ़्फ़ुज़ के लिए महफूज मकामात पर रहें। नाज़रीन, जनूबी पंजाब के तमाम अजला इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है। बारिशें ना होने और खुश्क मौसम की वजह से दर्जे हरारत में इजाफा हो रहा है। तफसील जानते हैं इशफाक अहमद से। रहीमिया खान समेत जनूबी पंजाब में शदीद गर्मी की लहर जारी है। रहीमिया खान और इसकी चारों तहसीलों में मुसलसल जारी रहने वाली गर्मी की लहर से शहरियों के मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुए हैं। ज़िली इंतज़ामिया की जानब से शहर में ठंडे पानी का इंतज़ाम भी किया गया है। बारिश ना होने और जनूबी पंजाब का मौसम खुश्क रहने की वजह से दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। शहरियों को दिन के औकात में बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलने और पानी के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल की हिदायत की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक रहीमिया खान समेत जनूबी पंजाब के शहरों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। रहीमिया खान में आज दर्जा हरारत 44 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीवी न्यूज़, रहीमिया खान। और नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोटोहार, शिमाल मशरकी वस्ती पंजाब, इस्लामाबाद और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ चंद मुकामात पर बारिश की तवक्को है। इस दौरान चंद मुकामात पर यालाबारी और मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है। जनूबी पंजाब, जनूब मगरबी सिंध और जनूब मशरकी बलूचिस्तान में शाम और रात के दौरान आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि वस्ती जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहा। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात की जाए तो शहीद बेनज़ीराबाद, मोहनजोदड़ो, स्कंड, सिब्बी 48, दादू, जैकबाबाद, खैरपुर, पडीदन, मट्ठी और खानपुर में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम का अहवाल आपने जाना, अब आपको लिए चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया रुमैसा। नाज़रीन, मौसम की खबरों के साथ ही खबरनामा मुकम्मल हुआ। हमें हमारी न्यूज़ टीम के हमरा दीजिए इजाज़त। मज़ीद किसी भी खबर या अपडेट के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।